یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا باپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے جو خدا نے ہمیں دیا ہے، اور ابھی بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی تھیں، تو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں عظیم مکاشفات کے لیے اور خدا کے کلام، عظیم کلام کے لیے۔ تو آئیے کتاب مقدس میں سے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم ایک مضمون کو لے کر چل رہے ہیں۔ وہ کیا مضمون ہے؟ بلاہٹ۔ کیا ہے؟ خداوند نے ابراہم کو بلایا۔ تو ہم اس پر غور کر رہے تھے کہ خداوند نے جب اسے بلایا ہے تو اس کی حالت کیسی تھی، کس حالت میں خدا نے اسے بلایا؟ جی، خداوند نے کس حالت میں اسے بلایا؟ اس کے علاوہ کچھ اور؟ کسدیوں کی اونٹ سے بلایا، آگے قوموں کا باپ بنانے کے لیے بلایا۔ اسے قوموں کا باپ، وہ پہلے کیا تھا؟ وہ صرف باپ کیا تھا؟ باپ تھا۔ اور خدا نے اسے بلایا اس لیے کہ اسے قوموں کا باپ بنائے۔ سب بولے ہاللیلویا۔ تو اب ہم بتائیں گے کہ لاسٹ میں ہم نے کہاں پر اس کو جو ہے سٹاپ کیا تھا؟ جی شاباش، آپ لکھ رہے تھے، آپ سن رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا اس کو کہاں پر جو ہے وہ وائنڈ اپ کیا تھا؟ جی، یسایہ 51 باب پہلی آیت، اور وہاں پر ہم نے اسے کیا کیا تھا؟ وائنڈ اپ کیا تھا، اسے روکا تھا۔ کوئی بات نہیں، نو پرابلم۔ تو جو خدا کے کلام کو سمجھنا ہے، جاننا جو ہے، وہ انتہائی ضروری ہے۔ سب بولے ہاللیلویا۔ ہم نے کہاں پر اس کو سٹاپ کیا تھا؟ یسایہ 51 باب پر اس کو کیا کر دیا؟ 1 اور 2 آیت پر ہم نے اس کو کیا کیا؟ ہم وہی جس کو سٹارٹ کریں گے۔ جی کوئی جلدی سے پڑھ دے۔ اے لوگو، کیا لکھا ہے؟ اے لوگو جو صداقت کی پیروی کرتے ہو، جو صداقت کی پیروی کرتے ہو، اور خداوند کے جان کو، ہاں جی، وہ میری سنو۔ ہاں جی، اس چٹان پر جس میں میں نے تم کو کاٹے گئے ہو، ہاں جی، اور اس گڑھے کے سوراخ پر جہاں سے تم کھودے گئے ہو، ہاں جی، اپنے باپ ابراہم پر کیا کرو؟ نظر کرو، اور سارا پر جس سے تم پیدا ہوئے یاد نگاہ کرو کہ جب میں نے اسے بلایا، ہاں جی، وہ اکیلا تھا۔ وہ کیا تھا؟ تو جب خدا نے اس سے بلایا تو وہ کیا تھا؟ خدا نے جب اس سے بلایا تو وہ کیا تھا؟ اکیلا۔ خدا نے اکیلے کو بلایا تھا۔ کس حالت میں بلایا؟ اکیلے میں۔ پر کلام مقدس کے مطابق مجھے یہ بتائیں کہ خدا نے جب اسے بلایا تو اسے اکیلے میں بلایا۔ تو جب اسے بلایا تو وہ اکیلا تھا، پر خدا نے کیا اسے اکیلا رہنے دیا؟ کیا اسے اکیلا نہیں رہنے دیا؟ جب خدا کسی کو بلاتا ہے تو اسے اکیلا نہیں رہنے دیتا، بلکہ اسے کیا بخشتا ہے؟ اسے کثرت بخشتا ہے۔ آمین۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کا 21واں باب پڑھیں تو وہاں پر کتاب مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا نے جو کہا تھا اس وعدے کو خدا نے کیا کیا؟ پورا کیا۔ کیا وعدہ کیا تھا خدا نے ابراہم کے ساتھ؟ کہ میں تجھے ایک قوم بناؤں گا۔ تو قوم بنانے کے لیے اولاد کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بے شک خدا نے اسے ایک لونڈی سے بیٹا دیا، ہاجرہ سے بھی بیٹا دیا۔ اس کا نام کیا ہے؟ اسماعیل اسے دیا۔ پر اسماعیل کافی نہیں تھا۔ خدا کا مقصد اسماعیل پر پورا نہیں ہو جاتا، کیونکہ خدا نے جب وعدہ کیا ہے تو لونڈی کے ساتھ نہیں، بلکہ خدا نے کیا کہا کہ میں تجھے کیا کروں گا؟ سارا سے دوں گا۔ کیا کروں گا؟ سارا سے تجھے اولاد دوں گا، تجھے بیٹا دوں گا، اور تو اس کا نام کیا رکھنا؟
इज़हाक रखना। जरा पढ़िएगा पैदाइश 21वां बाब, पहले ऐसे जरा पढ़िएगा खुदा के कलाम में से जल्दी से। और खुदावंद ने हाँ जी, जैसा उसने फरमाया था, जैसा उसने, और खुदावंद ने जैसा उसने फरमाया था, उसने फरमाया था, सारा पर नजर की, सारा पर नजर की, और उसने अपने वादे के मुताबिक, उसने अपने वादे के मुताबिक सारा से किया। सारा से किया। मतलब उसने अब्राहम और सारा को क्या किया, याद किया। जब खुदा ने अब्राहम को निकाला तो उसे कहा कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और मैं तुझे बरकत दूंगा और मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा। खुदा ने जब उससे बुलाया, तो जब खुदा ने उसे बुलाया तो वो बुलाकर भूल नहीं गया, क्योंकि जिसे उसने बुलाया उसने खुदा की फर्माबरदारी की है, ताबेदारी की है। खुदा ने उसे कहा कि अपने बाप का घर छोड़ दे, नातेदारों को छोड़ दे, मुल्क छोड़ दे, तो उसने खुदा की ताबेदारी की। वो खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए निकला, वो निकल पड़ा। उसने खुदा की ताबेदारी की, उसने खुदा की बात को माना, खुदा की बात को तरजीह दी, तो खुदा ने भी उसे तरजीह दी और खुदा ने उसे क्या रखा, उसे याद रखा। तो यहां पर जो हमने पढ़ा है वो ये है, आगे बढ़िएगा थोड़ा सा। सो सारा हामला हुई, सो सारा हामला हुई, और इब्राहिम के लिए उसके बुढ़ापे में, अब्राहम के लिए उससे बुढ़ापे में क्या हुआ, उसी मुआयन वक्त पर, उसी मोइन वक्त पर जिसका जिक्र खुदा ने किया था, जिसका वादा खुदा ने यहोवा ने किया था, उसी मोइन वक्त पर वो क्या हुआ, उसके बेटा हुआ। उसके बेटा हुआ। और इब्राहिम ने अपने बेटे का नाम, अब्राहम ने अपने बेटे का नाम क्या रखा, जो उससे सारा से पैदा हुआ, इसहाक रखा। उसका नाम इज़हाक रखा। खुदा का ये वादा था कि मैं तुझे क्या दूंगा। जब खुदा ने उससे बुलाया तो वो किस हालत में था, अकेला था। नजर करो अपने बाप पर कि वो जब उससे बुलाया गया वो क्या था, अकेला था। मतलब क्या निकला कि जब कोई खुदा की आवाज सुनकर खुदा के पीछे चलता है, खुदा के लिए जो है वो सब कुछ छोड़कर आता है, तो खुदा उससे जो सब कुछ छोड़कर आता है उसे अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उसे क्या देता है, उससे बरकत देता है, उससे कसरत बख्शता है। आमीन, सब बोले हालेलुया, हालेलुया। तो आइए एक हवाला और निकालेंगे, हिजकिय्याह की किताब, उसका 33वां बाब, उसकी 24वीं आयत, खुदा के कलाम में से जरा हम पढ़ेंगे जी जल्दी से। बेटियों में से कोई बहन या कोई भी आगे से पढ़े जल्दी से। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, ऐ आदमजाद, मुल्क इस्राएल के वीरानों के बाशिंदे यूं कहते हैं हाँ जी, कि अब्राहम एक ही था अब्राहम एक ही था और वो इस मुल्क का वारिस हुआ, वो इस मुल्क का वारिस हुआ, और हम तो बहुत से हैं, हम तो बहुत से हैं, बल्कि हमको मिरास में दिया गया है। हमको मिरास में दिया गया है। इसलिए तू उनसे कह दे, हाँ जी, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है खुदा यूं फरमाता है कि तुम लहू समेत खाते और अपने बुतों की तरफ आंख उठाते हो, तुम लहू समेत खाते और अपने बुतों की तरफ क्या करते हो, आंख उठाते हो आंख उठाते हो और खून रेजी करते हो। और खून रेजी करते हो। क्या तुम उनके वारिस होगे? क्या तुम उस मुल्क के वारिस होगे? तुम अपनी तलवार पर तकिया करते हो, तुम अपनी तलवार पर तकिया करते हो, तुम मकरू काम करते हो, तुम मकरू काम करते हो। तुम में से हर एक अपने हमसाया की बीवी को नापाक। सुनिएगा, जब अब्राहम को बुलाया गया, यहाँ पर एक बात हो रही है कि बनी इसराइल का जो शोर है, बनी इसराइल की जो गुफ्तगू है, वो खुदा के खिलाफ है। क्या है? खुदा के खिलाफ ये है कि जब खुदा ने अब्राहम को बुलाया तो वो अकेला था, तो खुदा ने उसे ये मुल्क दिया, तो वो अकेला था, हमें मिरास के तौर पर दिया। पर क्या है, पर क्या हुआ, क्या है? बनी इसराइल ये बात क्यों कर रहे हैं? और ये कब की बात है? जब वो कहां पर थे? गुलामी में थे, बाबुल के अंदर 70 साल की जो असीरी थी, 70 साल की असीरी के अंदर जो है बनी इसराइल मौजूद है। ये वो असीरी की मैं बात कर रहा हूं जो यिर्मयाह के दौर में आई, जिसकी नबूवत यसाया ने या यिर्मयाह ने की।
نبیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل کیا ہوگی؟ غلام ہو جائے گی، اسیر ہو جائے گی. تو یہ اسیری کے اندر ہیں. یہ کہاں پر ہیں؟ اسیری کے اندر ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں. پر خدا نے نبی سے بات کی ہے کہ بنی اسرائیل کو بتا دے، ان کو بتا. دوبارہ سے سنیے گا ذرا، دوبارہ اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا. 24ویں سے دوبارہ پڑھیے گا جی. کہ اے آدم ذات، کہ آدم ذات، ملک اسرائیل کے ویرانوں کے باشندے یوں کہتے ہیں. ملک کیا لکھا ہے؟ ملک اسرائیل کے ویرانوں، ملک اسرائیل کے ویران کے کیا کہتے ہیں؟ باشندے. جو ویران ہو چکا اس کے باشندے کیا کہتے ہیں؟ ان کی باتیں کیا ہیں؟ کہ ابراہیم ایک ہی تھا، ابراہیم کیا تھا؟ ایک ہی تھا، اور وہ اس ملک کا وارث ہوا. وہ اس ملک کا وارث ہوا، اور ہم تو بہت سے ہیں، ہم تو بہت سے ہیں. ملک ہم کو میراث میں دیا گیا ہے. ملک ہمیں میراث میں دیا گیا ہے. اس لیے تو ان سے کہہ دے، ہاں خداوند خدا یوں فرماتا ہے ہاں جی. کہ تم لہو سمیت کھاتے. اصل میں کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا کی شریعت کو توڑتے ہیں، خون سمیت کھاتے ہیں. تو یہ خدا کا حکم تھا. مجھے یہ بتائیں کہ دانیل نے یا صدرک مصر عبدالجو نے کیوں وہاں کی خوراک کھانے سے انکار کیا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی، یہی ایک وجہ تھی کہ وہاں پر خدا کی شریعت کو پامال کیا جا رہا تھا. اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ باتیں تو یہ غلامی کے اندر کر رہے ہیں، پر یہ نکلے کیوں ہیں؟ کیونکہ پیچھے بھی یہ ظلم کر رہے تھے، پیچھے بھی یہ زیادتی کر رہے تھے. بادشاہ بھی زیادتی کر رہا تھا، امیر لوگ بھی زیادتی کر رہے تھے، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ. یہ سب جو ہے وہ برائی کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ یہ برائی کر رہے تھے. تو خدا نے اس لیے ان کو کیا کر دیا؟ نکال دیا. کیونکہ انہوں نے خدا کی میراث کو ناپاک کیا ہے، خدا کی زمین کو ناپاک کیا ہے. ملک کنعان یا یروشلم یہ خدا کی مقدس زمین ہے، اور بنی اسرائیل نے خدا کی مقدس زمین کو کیا کر دیا؟ ناپاک کر دیا. ابراہیم نے تو ایسے نہیں کیا، وہ اکیلا تو ضرور بلایا گیا، پر جو بلایا گیا وہ وفادار ہے، وہ تابعدار ہے، وہ خدا کی وفاداری میں زندگی بسر کر رہا ہے. اس لیے اس کو میراث کے طور پہ ملا، یا خدا نے اس کے ساتھ جو وعدے کیے ان کو پورا کیا، کیونکہ وہ وفادار رہا. وہ اکیلا تھا، اکیلے ہونے کی صورت میں، تنہا ہونے کی صورت میں وہ خدا کا وفادار ہے. بلکہ بائبل یہاں تک بتاتی ہے، عبرانیوں خط میں لکھا ہوا ہے کہ جو اس کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے اس کی زندگی میں پورے نہیں ہوئے، وہ بعد میں ہوئے ہیں. پر وہ سب کچھ چھوڑ چھڑا کر آ گیا، کیونکہ اس نے وعدہ کرنے والے کو کیا جانا؟ سچا جانا. اس نے وعدہ کرنے والے کو کیا جانا؟ سچا جانا. جس نے اس نے بلایا ہے اس نے اسے سچا جانا ہے کہ خدا نے جو کہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. آمین. اگر آپ 22ویں باب کو پڑھیں تو جب خدا اسے اکلوتے کو قربان کرنے کے لیے کہتا ہے تو وہ کیوں چلا گیا؟ کیونکہ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا ایمان یہ تھا کہ خدا مردوں میں سے جلا سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں ایک مردہ سا شخص تھا، نا امید تھا، مجھ سے اور سارا سے کبھی بھی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا. یہ ہو ہی نہیں سکتا جتنی ایج تھی. میڈیکل 35 سال کے بعد عورت کو بچہ پیدا کرنے سے انفٹ پیش کرتی ہے. میڈیکل یہ کہتا ہے کہ 35 سال کے بعد عورت جو ہے وہ بچہ بڑی مشکل سے پیدا کر سکتی ہے. ناممکن ہے، مشکل ہے. پر خدا نے وہ کر کر دکھایا تو ناممکن تھا، اسے ممکن کر کر دکھایا. کیونکہ جس کے پیچھے وہ آئے تھے، جس نے انہیں بلایا تھا، انہوں نے اسے کیا جانا؟ سچا جانا. ان باتوں کو سمجھنا کیا ہے؟ بڑا ضروری ہے کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ خون سمیت کھاتے ہیں، یہ شریعت کو توڑتے ہیں. کیونکہ کلام میں یہ لکھا ہے، شریعت یہ بتاتی ہے
کہ تم گوشت اب کھانا تو اس کا خون جو ہے اس کی جو جان ہے وہ نہیں کھانی، پر یہ خون سمیت کھاتے ہیں. آج بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں. جاپان کے جو لوگ ہیں وہ جب گوشت کھاتے ہیں تو وہ خون سمیت کھاتے ہیں، بلکہ خون اس میں سے بہ رہا ہوتا ہے جب اسے تلا جاتا ہے، اسے روسٹ کیا جاتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ خون سمیت ہی چیزوں کو کھا جاتے ہیں، نگل جاتے ہیں. اور یہاں پر اور بھی باتیں کچھ دیکھیے، آگے بڑھیے گا ذرا. اس لیے تو ان سے کہہ دے، اس لیے تو ان سے کہہ دے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے، کہ تم لہو سمیت کھاتے ہاں، اور اپنے بتوں کی طرف آنکھ اور تم کیا کرتے ہو؟ اپنے بتوں کی طرف کیا کرتے ہو؟ آنکھ اٹھاتے ہو اور خون ریزی کرتے ہو. اور خون ریزی کرتے ہو، بت پرستی بھی کرتے ہو. یہ بھی آئین ہے. یہ تو پہلا حکم ہے کہ میرے حضور کسی غیر معبود کو سجدہ. پہلے حکم کو وہ توڑ کر رد کرتے ہیں، پامال کرتے ہیں. آگے، کیا تم ملک کے وارث ہوگے؟ کیا تم ملک کے وارث ہو جاؤ گے؟ نہیں. آگے، تم اپنی تلوار پر تکیہ کرتے ہو. تم اپنی تلوار پر تکیہ کرتے ہو. ابراہیم نے خدا پر تکیہ کیا ہے، تلوار پر نہیں، اپنی طاقت پر نہیں، اپنی دولت پر نہیں، اپنی جاگیر پر نہیں، اپنے آپ پر نہیں، بلکہ اس نے خدا پر توکل کیا. اس سے تو وہ نکل آیا تھا. اگر بنی اسرائیل توکل کرتے تو کبھی بھی ملک کنعان سے نکل کر بابل میں نہ جاتے، غلامی میں نہ جاتے. تو خیر آگے چلتے ہم. ایک اور والا نکالیے گا خدا کے کلام میں سے، زندہ کلام میں سے، یشوع کی کتاب 24واں باب پہلی اور تیسری آیت تک خدا کے کلام میں سے ذرا. جی. اس کے بعد یشوع نے اسرائیل کے سب قبیلوں کو، اس کے بعد جب خدا نے جو ہے یشوع کے وسیلہ سے وہ نقشہ جو خدا نے موسیٰ کو دیا، اور موسیٰ نے جو ہے وہ یشوع کو سب کو سپرد کیا، اور موسیٰ جو ہے وہ خدا کے کہنے کے مطابق وفات پا گیا، اور بنی اسرائیل جب دیے ہوئے نقشے کے مطابق بیٹھ گئی، تو جب جو ہے یشوع کا آخری وقت چل رہا تھا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو، تو اس نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو بلایا. بیٹا، بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو بلایا. پڑھیے گا آگے. اس کے بعد یشوع نے اسرائیل کے سب قبیلوں کو سکم میں جمع کیا، سکم میں جمع کیا، اور اسرائیل کے بزرگوں اور سرداروں اور قاضیوں اور منصبداروں کو بلوایا. ہاں جی، اور وہ خدا کے حضور حاضر ہوئے. ان سب کو بلایا گیا. قاضیوں کو بلایا، منصبدار جو تھے ان کو بلایا، اور وہ سب کس کے حضور جمع ہوئے؟ خدا کے حضور کیا ہوئے؟ حاضر ہوئے. آگے. تب یشوع نے ان سب لوگوں سے کہا، تب یشوع نے ان سب لوگوں سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے ابا یعنی ابراہم اور تمہارے ابا یعنی کہ ابراہم اور ناہور کا باپ تارا وغیرہ ہاں جی قدیم زمانہ میں بڑے دریا کے پار رہتے، بڑے دریا کے پار رہتے اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے، دوسرے معبودوں کی کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ وہ پرستش کرتے تھے دوسرے معبودوں کی. وہ دوسرے معبودوں کی کیا کرتے تھے؟ پرستش کرتے تھے. آگے. اور میں نے تمہارے باپ ابراہم کو بڑے دریا کے پار سے لے کر لیا، اسے بلایا، کنعان کے سارے ملک میں اس کی رہبری کی، کنعان کے سارے ملک میں اس کی کیا کی؟ رہبری کی، رہنمائی کی. آگے. اور اس کی نسل کو بڑھایا، اس کی نسل کو بڑھایا، اور اسے اسحاق عنایت کیا. اسے اسحاق دیا، اور میں نے اسحاق کو یعقوب اور اسحاق کو یعقوب اور عیسو بخشے، عیسو دیا. ہاں جی. اور عیسو کوڑے شعیر دیا ہاں جی. کہ وہ اس کا مالک ہو. آگے. اور یعقوب اپنی اولاد سمیت مصر میں گیا. ہاں. اور میں نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا. آگے. اور مصر کو جو میں نے اس میں کیا اس کے مطابق میری مار پڑی. ہاں جی. آگے. اور اس کے بعد میں تم کو نکال لایا. اس کے بعد میں تمہیں نکال کر لایا، جیسے باپ کو نکالا تمہیں بھی نکالا. باپ اکیلا نکالا، اسے بیٹا دیا، اور بیٹے کو آگے بیٹے دیے، اور آگے ان کی اولاد کو بھی آگے اولاد دی، ان کو میراث دی. عیسو کو بھی جو ہے وہ میراث کے طور پر جو ہے وہ جگہ مل گئی. آگے.
तुम्हारे बाप दादा को मैंने मिस्र से निकाला तुम्हारे बाप दादा को मैंने मिस्र से निकाला, और तुम समुंदर पर आए, तुम उस समुद्र पर आए। तब मिस्रियों ने रथों और सवारों को लेकर उन्होंने रथों और सवारों को लेकर क्या किया? तुम्हारा पीछा किया, पर खुदा ने उनको क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। खुदा ने उनको मार दिया। और जब उन्होंने खुदावन से फरियाद की, जब उन्होंने खुदावन से फरियाद की, तो उसने तुम्हारे और मिस्रियों के दरमियान अंधेरा कर दिया आगे और समुंदर को उन पर चढ़ा लाया, समुद्र को उन पर चढ़ा लाया, और उनको छुपा दिया। उनको छुपा दिया। और तुमने जो कुछ मैंने मिस्र में किया अपनी आंखों से देखा, जो कुछ मैंने मिस्र में किया तुमने अपनी आंखों से देखा। और तुम बहुत दिनों तक बियाबान में रहे। हाँ, फिर मैंने तुमको अमोरियों के मुल्क में जो यरदन के उस पार रहते खुदा ने उन्हें सब कुछ दिया, और खुदा उनके साथ साथ सब बातों में उनकी क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। ये खुदा उन्हें बता रहा है, खुदा ने उन्हें जताया है यशुआ के वसीला से कि तुम्हारे बाप को मैंने कहां से निकाला, और वो अकेला था और मैंने उससे बढ़ाया। जब कोई खुदा की बात मानता तो खुदा उसे क्या करता है? बढ़ाता है। उसे क्या करता है? बढ़ाता है। इधर एक वाला और पढ़ेंगे, ज़बूर की किताब, ज़बूर 45 उसकी 10 और 11वीं आयत, खुदा के कलाम में से। शाबाश। 45 ज़बूर उसकी 10 और 11 आयत को जल्दी से जी। ऐ बेटी सुन, ऐ बेटी सुन, गौर कर हाँ जी, और कान लगा, गौर कर और कान लगा। अपनी कौम और अपने बाप के घर को भूल जा, हाँ और बादशाह तेरे हुस्न का मुश्ताक होगा, हाँ जी, क्योंकि वो तेरा खुदावंद है। हाँ जी, तू उसे सजदा करना, हाँ। और सूर की बेटी हथियार लेकर हाजिर होगी। सुनिएगा, अब यहां पर जो एक टर्म इस्तेमाल की गई है वो बाप बेटी को कह रहा है, ऐ बेटी सुन, अपने बाप के घर को क्या कर जा? भूल जा। और क्या करे? तब बादशाह क्या होगा? तेरे हुस्न का क्या होगा? मुश्ताक होगा। अब मुझे ये बताएं, अब बेटी किसे कहा गया है? ये बनी इस्राइल है। क्या है? यह मौजूदा कलीसिया है। और दुल्हा कौन है? बादशाह कौन है? यीशु है। आमीन। कौन है? यीशु है। और इस बात को समझना इंतहाई जरूरी है कि बेटी अपने बाप के घर से निकलती है और अपने शोहर के यहां जाती है, और तू उसे क्या करना? तू उसे ही सजदा करना। मतलब कौम जो है वो अपने खुदावंद को, अपने यहोवा को सजदा करे, अपने खुदा को सजदा करे। कलीसिया का काम है, मुकद्दसों का काम है कि जिसने उन्हें बुलाया है, जो उन्हें लेकर आया है, जिसने उसे बीवी बनाया है, उसी को सजदा करे, उसी की ताबेदारी करे, उसी की ताबेदारी में रहना है। जैसे एक औरत को शौहर के ताबे रहना है, उसी तरह एक कौम को अपने खुदा के ताबे रहना है, या कलीसिया को अपने खुदा के ताबे रहना है। अगर ऐसा नहीं करती तो वो उसे कभी भी वो उसे कबूल नहीं कर सकता, वो उसकी नजर में मकबूल नहीं होगी। तो बनी इस्राइल से यही तकाजा है। हिजकिय्याह के अंदर जो हमने पढ़ा वो यही बात है, जो हमने यहोशू की किताब में पढ़ा वहां पर भी यही है कि जिसने बुलाया है उसी की ताबेदारी करनी है। और 24वें बाब के अंदर ही एंड पे आगे 15वीं-16वीं आयत में तकरीबन जाकर जो है वो यहोशू कह देता है कि तुम्हें जो भला मालूम होता है वो करो। अगर खुदावंद ही खुदा है, अगर यहोवा ही खुदा है, तो उसकी इबादत करो, उसी की प्रस्तुत करो, उसी को सजदा करो। अगर माबूद बुत खुदा हैं तो फिर उन्हीं की सजदा, उनको क्या करो? सजदा करो। पर वो वहां पर इकरार क्या करते हैं कि हम खुदावंद ही को सजदा करेंगे, हम खुदावंद को क्या करेंगे? जो हमारे बाप अकेले को लेकर आया, उसने उसे कसरत बख्शी, उसने उसे बढ़ाया। जब खुदा बुलाता है तो खुदा कसरत देता है, खुदा बढ़ाता है। तो वो ये भी तकाजा करता है कि जैसे बीवी एक ही शौहर की ताबेदार रहती है, इसी तरह जरूर है कलीसिया या कौम
जिसे खुदा मिस्र से निकाल कर लाता है या गुलामी के घर से निकाल कर लाता है, वो अपने खुदाम की ताबेदारी करे। अच्छा बाप जो होता है वो अपनी बेटी को यही सिखाता है। मेरी माँ ने एक बार मेरे और मेरे वालिद साहब की हमारे सामने थोड़ा सा गुस्सा नाराजगी हुई, तो कोई बात हुई, तो मेरी माँ ने मेरे वालिद साहब से कहा, मैं आज तक अपने बाप की कही हुई बात को निभा रही हूं। क्यों उन्होंने ये बात कही? कि जैसे हालात गुजरे, शुरू में बड़े अच्छे हालात थे, बाद में वालिद साहब बीमार हो गए और तकरीबन 16 साल बीमार रहे, 4 पाई पर चले गए। तो इस हालत में औरत कोई भी बुरा काम कर सकती है, कोई भी बुराई कर सकती है, छोड़ के जा सकती है। जब औरत को खुद बच्चे पालने पड़े, खुद कारोबार करना पड़े, सब कुछ करना पड़े, तो बहुत सारी कम औरतें हैं जो कि बुरे हालात में अपने शौहर की या अपने शौहर के घर की या अपनी औलाद की सर जो उनके ऊपर साया करती है, या बुराई में, बुरे वक्त में, बुरे हालात में साथ देती है। वरना बुरे हालात में लोग छोड़ देते हैं, रिश्तेदार छोड़ देते हैं, बीवी छोड़ देती है, लोग छोड़ देते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी औरतों को मैं जानता हूं, बहुत सारे रिश्तेदारों को मैं जानता हूं जिन्होंने शौहर के बुरे वक्त में अपने शौहर को छोड़ दिया है। ये बहुत सारी मिसालें हैं। जब वो बीमार हुए, जब उनके अंदर कमजोरी आई, तो उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बाप की बात को निभा लूं, क्योंकि मेरे बाप ने कहा था, तू रोस के नहीं होना, लड़ के नहीं होना, शौकत नू छड़ के नहीं होना, तेरी मंजी होनी चाहिए है मरी दी, लड़ के नहीं होना, हंसदे होना है, रोंदे नहीं होना। तो यह है ताबेदारी। यह मैंने जिस्मानी मिसाल दी है, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर यह मिसाल हमें दी गई है। यह हमारे सामने ये मिसाल है कि ताबेदारी करनी है। जिसने बुलाया, जिसने छुड़ाया है, अगर उसकी ताबेदारी नहीं है तो याद रखिएगा वो कभी भी वो चीजें मिरास में नहीं पा सकती जो उसे मिलना चाहिए। मुझे यहां पर याद आ रहा है, मुझे यहां पर आस्तर मलका याद आ रही है और उसके साथ वश्ती याद आ रही है कि वश्ती को जब बुलाया गया कि बादशाह चाहे कि अपनी बेगम का, अपनी बीवी का जमाल, अपनी बीवी का जमाल लोगों को दिखाए, उसकी खूबसूरती दिखाए, तो उसने बादशाह की बात को क्या जाना? हकीर जाना, उसकी बेइज्जती उसने की। और सिर्फ उसी ने नहीं की, बल्कि साथ जो औरतें थी उसने उनको भी मिला लिया। और वहां पर फिर यह फैसला हुआ कि यह तो बात ठीक नहीं है। और फिर मादियों का कानून वहां पर पास हुआ। मादी और फारसियों का जो कानून है, जब एक बार पास हो जाता है वो रद्द नहीं हो सकता, चाहे सर कलम हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो रद्द नहीं हो सकता। तो यहां पर भी ये चीज सिखाई गई है कि अपने बाप के घर को क्या करना है? भूल जाना है। अगर वश्ती ताबेदार रहती, बादशाह की बात को मानती, अपने शौहर की बात को मानती, तो तख्त से न उतरती। उसे तख्त से उतार दिया गया, निकाल दिया गया और उसकी जगह पर आस्तर आई। और आस्तर वफादार है। आस्तर क्या है? खुदा तरस है और वफादार है, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। जो उसका रूहानी खामंद है यानी कि खुदामंद, उसकी भी वफादार है, और जो बादशाह है उसकी भी वफादार है, क्योंकि पीछे से सिखा कर भेजा गया था कि वफादार रहना है। हो सकता है कि खुदा ने मुसीबत की घड़ी के लिए तुझे यहां तक पहुंचाया है। ये बात आगे खुलकर आई और वाकई ये बात फिर सामने आई कि खुदा ने उसे क्यों तख्त पर बिठाया था। याद रखिए, जो निकाल कर लाता है, जो छुड़ा कर लाता है, वही मालिक है। उसी की ताबेदारी करनी है। उसी की क्या करनी है? ताबेदारी करनी है। लूका की इंजील को निकालिएगा जरा, 14वां बाब 26 से लेकर 33वीं आयत तक, खुदा के कलाम में से। जी शाबाश है, जल्दी से बेटा पढ़े। अगर कोई मेरे पास आए
अगर कोई मेरे पास आए, और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों, जो कोई मेरे पास आए, मुंह ते चुक के पढ़। हाँ जी, ऐसे पढ़ा जी। अगर कोई मेरे पास आए, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और अपने बाप और माँ और अपनी माँ को और बीवी और बीवी और बच्चों और भाइयों को और बहनों, और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, तो मेरा शागिर्द नहीं, मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। अब्राहम ने ये सब कुछ किया है, उसने सब कुछ खुदावंद के लिए छोड़ा है, और यहां पर भी यही तकाजा है कि सब कुछ छोड़ना है। मतलब क्या है इसका? ये नहीं कहा कि एक बंदा पादरी बन गया या मुबशर बन गया तो बीवी बच्चे छाड़ के तो टुर जाए किधरे ताकि बच्चे कदर होंगे रहने। इसका मतलब यह है कि उनसे ज्यादा तरजीह देना, उनसे ज्यादा, उससे ज्यादा क्या देना? तरजीह देना। उससे ज्यादा क्या देना? सुनिएगा मेरी बात, ये पादरी साहब को आप जानते हैं, हमारा यहाँ पर एक बच्चा है, वो कहता है मैंने उसकी तरह बनना है, बल्कि उससे बड़ा बनना है। बेनियन की बात कर रहा हूँ। तो बेनियन के बारे में बताया गया है, यहाँ बताया जाता है कि वो 18 घंटे दुआ करता था, तो उसकी बीवी ने उसे तलाक दे दी। उसकी बीवी ने, एक बंदा 18 घंटे दुआ करता है, फिर उन्हें प्रोग्राम तो भी जाना है, लोगों को ही मिलना है, तो बीवी को कदों मिलता होगा, बच्चे को कदों टाइम देता होगा। तो उसकी बीवी उसे क्या दे दी? यसु मसीह ने ये नहीं कहा, यसु मसीह ने ये नहीं कहा, पलूस ने एडवाइस दी है, उसने एक मशवरा दिया है। उन्होंने कहा काका अगर तू ब्याह तो बगैर ही रहे तो फिर ठीक रहेगा, सिर्फ खुदावंद को खुश करेगा। फिर की करेगा? खुदावंद को की करेगा। फिर ये तौफीक सारे नहीं है, ये तौफीक सारे कहीं एवं जानबूझ के सेडान नहीं कोशिश करते, तो कुछ अरसे तो बाद पुठे होकर पे होंगे ने जज्बाती। पेंटिकोस्टल खैर ज़्यादा जज्बाती होंगे ने, जो पेंटिकोस्टल होते हैं ना, हम जो पेंटिकोस्टल हैं, हम में लोग जो है कुछ ज्यादा जज्बाती होते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर हर चीज की कहानी बताई गई है जी। आगे क्या है? आगे पूरा हो गया। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे, जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए, वो मेरा शागिर्द नहीं हो, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। आमीन। खुदावंद ने बुलाया अब्राहम को, तो वो खुदा का शागिर्द बना है। तो जब खुदावंद का शागिर्द बना तो क्या है? शागिर्द शाह के गिर्द है, वो उसी के जो गिर्द है, उसी को तरजीह देता है। पर उन्हें सारा छाड़ नहीं दिता, वो हंसी मजाक करता फड़िया गया सी, बादशाह ने देख लिया सी। मतलब अपनी फैमिली को टाइम देना जरूरी है। प्रॉब्लम यहीं से खड़ी होती है, प्रॉब्लम यहीं से खड़ी होती है। आगे जी। क्योंकि तुम में ऐसा कौन है, तुम में ऐसा कौन है कि जब वो एक बुर्ज बनाना चाहे, हाँ जी, तो पहले बैठकर लागत का हिसाब ना कर ले। हाँ जी, याद रखिएगा, पहले लागत का क्या करना है? हिसाब करना है। हमने से 33 आयत तक पढ़ना था, हो गया? अच्छा ठीक, आगे चले जी। कि आया मेरे पास उसके तैयार करने का सामान। सुनिए सुनिए, क्या लिखा है? तरतीब बताई गई है कि पहले क्या करना है? हिसाब लगाना है। पहले क्या करना है? तुम में से कौन है जो कोई बुर्ज बनाना चाहे तो उसका हिसाब ना लगाए? मुझे ये बताएं, जब बाबिल में बुर्ज बनाया गया तो उसका हिसाब पहले लगाया गया था। पहले उसका स्केच लिया गया कि उसे कहां तक लेकर जाना है, तो बताया गया है कि जिसकी चोटी कहां तक हो? आसमान तक। तो जा रहा था, आसमान दे वाले लेके जा रहे सन, खुदा उतरिया। खुदा ने कहा इंसान ने बच्चे की कर रहे हैं। खुदा ने देखा होना क्या, ए खुदा ने कहा जो ना क्या करनेंगे। खुदा ने जुबान बदल दी। खुदा ने पता से ना साफ पूरा ला दिया कि करना की है। आमीन। यू ही जुबानें नहीं बदलती। कोई एक मांग रहा तो गारा दे रहा, गारा मांग रहा तो टप डाल लिया, उन्होंने काम खराब हो गया। काम क्या हो गया उनका? तुम में से कौन है जो कोई बुर्ज बनाना चाहे
تو اس کی لاگت، اس کا حساب نہ لگائے، پہلے حساب کیا جائے گا. آمین. مطلب ابراہیم اگر نکلا ہے خدا کے ساتھ، پیچھے آیا ہے، سب کو چھوڑ کر آیا، تو یہ حادثہ نہیں ہوا کہ یوں خدا نے کہا یوں نکل پڑا. اس نے پورا حساب لگایا ہے. اس نے خدا کے بارے میں وہ پورا جانتا ہے. اس نے خدا کو خدا سمجھا ہے. اس نے خدا کو، آج بہت سارے لوگ ہیں وہ منادی کی تو نکلے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد ان کی عجیب باتیں ہوتی ہیں، ان کے کمنٹس عجیب سے ہوتے ہیں، عجیب سی وہ باتیں کرتے ہیں. آج میں ہسٹری دیکھ رہا تھا کوریا کے اندر یا چائنا کے اندر جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو مسیح کی خاطر ان کے ساتھ ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، عورتوں کا جو گروپ ایک دکھایا گیا ہے کہ وہاں پر جو کام کر رہے ہیں اس عورت کو جو ہے بجلی کے جھٹکے دے کر مارا جا رہا ہے. اس کو برہنہ کر کے جو ہے وہ بجلی کے جھٹکے دیے گئے، اس بات سے کہ تم انجیل کی منادی کیوں کرتے ہیں، بند کرو. یہ مسیح کی خاطر لوگ دکھ اٹھا رہے ہیں. پر اس کی پوری حصے میں یہ بتایا گیا کہ جب جب اسے مار پڑ رہی تھی، جب جب اسے تکلیف دی جا رہی تھی، تب وہ یہی دعا کرتی تھی، خداوند مجھے پاور دے تاکہ میں یہ سب کچھ تیرے لیے برداشت کر سکوں. میں مر بھی جاؤں گی تو بھی میں تیری منادی کرتی رہوں گی، میں تیرا پیغام دوں گی. اور ان عورتوں کو جو مسیح کا پرچار کر رہی ہیں، ان عورتوں کو جو جیل کے اندر عورتیں ہیں، ان کے سامنے کھڑا کر کے اذیت دی جا رہی ہے. اور اذیت کے دوران انہوں نے دعائیں جو کی ہیں وہ بتائی جا رہی تھی کہ انہوں نے دعائیں کیسی کی ہیں. اور وہ یہی کہہ رہی، خداوند میں چاہتی ہوں کہ میرے بدن کے وسیلہ سے، میرے وسیلہ سے ابلیس شرمندہ ہو اور یہ طاقت تو مجھے دے. اور ایسا ہوا ہے. پھر اینڈ یہی ہوا ہے کہ شیطان شرمندہ ہوا ہے اور وہ آزاد ہوئی ہیں اور انہیں منادی کی. حساب لگائے بغیر، جانے بغیر، جاننا ضروری ہے، تعلیم پانا ضروری ہے. ابراہیم نے خدا کو جانا. میں یہ سوال کرتا ہوں، آپ خدا کو جانتے ہیں؟ اگر آپ خدا کو جانتے ہیں تو آپ خدا کے لیے سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں. اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے. لوگ بھاگ جاتے ہیں کیونکہ مسیح کے ساتھ جو محبت ہے، کلام لکھا ہے خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا، اس نے دنیا سے محبت کیا اور دنیا کی محبت میں بیٹا قربان کیا گیا ہے. محبت، خدا کے ساتھ محبت کا تقاضا کرنا، دعویٰ کرنا قربانی ہے. مطلب آپ نے قربان ہونا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے. ابراہیم نے یہی کیا ہے، لوگوں نے یہی کیا ہے کہ اپنا آپ قربان کیا ہے. جو بلائے جاتے ہیں وہ قربانی دیتے ہیں. وہ کیا دیتے ہیں؟ جب لڑکی بیائی جاتی ہے تو وہ اپنے باپ اور اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے باپ کی عزت کے لیے وہ یہ کرتی ہے کہ وہ قربانی دیتی ہے. وہ بہت ساری چیزوں کو برداشت کرتی ہے. ان چیزوں کو برداشت کرتی ہے جو برداشت کے قابل نہیں ہوتی، وہ ان کو بھی برداشت کرتی ہے. کلیسیا وہی ہے، ابراہیم کے بچے وہی ہیں جو ابراہیم کی طرح سب باتوں کو کیا کریں؟ برداشت کر سکے خدا کے لیے. اگر کوئی خدا کے لیے برداشت نہیں کر سکتا، خدا کے لیے قربانی نہیں دے سکتا، نہ تو وہ شاگرد ہے نہ وہ بلایا ہوا ہے. آپ پہچان لیں، جو بندہ پیسے کی قربانی، اپنے بدن کی قربانی، وقت کی قربانی، حالات کی قربانی، جان اگر وہ نہیں دے سکتا تو وہ سولجر نہیں ہو سکتا. وہ سولجر آپ ایک سولجر سے پوچھیں، سولجر سے یہ اقرار نامہ لیا جاتا ہے. سولجر بیٹھا ہوا، پوچھنے سے سولجر سے یہ اقرار نامہ لیا جاتا ہے کہ کیا تم ملک کے لیے جان دے گا؟ وہ کہنا میں دوں گا، وہ کہنا میں دوں گا. یس باس. سولجر کیا ہوتا ہے؟ یس باس ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں ان چیزوں کے اندر گھستا رہتا ہوں، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ آرمی کیا کہتی ہے. آرمی کے بارے میں بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں. آرمی کے تعلق سے کوئی بھی ہسٹری، کوئی بھی چیز سامنے میرے آ جائے تو میں اسے ضرور دیکھتا ہوں کہ آرمی کے بارے میں کیا دکھایا جا رہا ہے. تو آرمی جو ہے سیم اسی طرح سے ہے.
जिस तरह को खुदा के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है और फर्ज समझता है, कौम के लिए, मुल्क के लिए जान देना फौजी जो है फख्र महसूस करता है। क्या करता है? और जो बड़े जज्बाती होते हैं वो कहते हैं काश के मेरी ड्यूटी बॉर्डर पे लगे। तो कई बेईमान ने खुदाया बॉर्डर जावा ही ना, किसी दफ्तर च टुर जावा, उत्थे ही जिंदगी दे साल 18 19 20 गुजर जाने। और जो दिल से काम कर रहा होता है वो पीछे नहीं मुड़ कर देगा। जी, हिसाब आगे। ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके, ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उस पर हंसना शुरू करें, हंसना शुरू कर दें कि इस शख्स ने इमारत शुरू तो की, इस शख्स ने इमारत शुरू तो की मगर तकमील ना कर सका। तकमील ना कर सका। या कौन ऐसा बादशाह है कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से लड़ने जाता हो, दूसरे बादशाह से लड़ने जा रहा हो, और पहले बैठकर मशवरा ना कर, पहले बैठकर मशवरा ना करे। पहले बैठकर मशवरे होते हैं, पहले क्या होते हैं? मशवरे होते हैं, बैठकर मशवरे होते हैं, फिर काम किया जाता है। अगर मशवरा ना हो तो फिर काम नहीं होता। ये अभी जो हमने शुरू किया ये पहले मशवरा हुआ है, इसकी लागत का हमने हिसाब लगाया है, ठीक है? तो सबसे पहले लागत का हिसाब लगाया जाता है। अगर जंग करने के लिए जाना है तो हिसाब किया जाता है। अगर न्यू डालकर बना ना सके तो लोग उस पर क्या करेंगे? हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। मेरी सुन लो गल, जज्बाती तौर पर जो है वो खादम बनने की जरूरत नहीं है। पहले सीखें, बूझें, पहले जाने कि खादम को क्या कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, एक खादम को खुदा के लिए क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो लागत लगाना बड़ा जरूरी है। जंग करने से पहले सलाह बात होती है। आमीन। क्या होती है? सलाह की जाती है। आपका क्या ख्याल है? रूस ने जो अटैक किया उसने यूं ही कर दिया, रातों रात बैठ के कर दिया है? पहले जर्नैल के साथ, पूरी कबीना के साथ जो है वो सारा जो है वो प्लान हुआ है, मंसूबा तय हुआ है कि कितना हमारा पैसा लगेगा, क्या लोड पड़ेगा मुल्क पर, आलमी तौर पर हमें क्या फेस करना पड़ेगा। सब चीजों का अंदाजा लगाकर तो तब किया गया है। और वो सबको आंखें दिखा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसके पास वो आइटम बताई जा रही है जो किसी के पास नहीं है। वो सबको आंखें निकाल रहा है क्योंकि उसने आपको इस लेवल पर किया है कि वो सबको आंखें दिखा सके। बादशाह जब किसी के साथ जंग करते हैं तो अक्लमंदी यही करते हैं कि वो सबसे पहले अपनी फौज को, उसकी एबिलिटी को, उसकी पावर को, सब चीजों को वो देखते हैं कि हमारी फौज क्या कर सकती है। आमीन। तो लीडर जो होता है वो साथ खड़ा होता है दिलेरी के साथ। क्या होता है? लीडर क्या होता है? एक मुल्क था, दो मुल्कों की मैंने एक स्टोरी देखी हिस्ट्री में। ये हुआ है, ये 1700 की बात कर रहा हूँ, सन 1700 की बात कर रहा हूँ मैं। 1700 तकरीबन 10 में या 17 में ऐसा करके था, 65 में शायद, सॉरी 65 के अंदर ये एक हिस्ट्री थी। तो एक जंग हुई, तो जो लड़ रहे थे अपने मुल्क के लिए वो थोड़े थे और वो हार रहे थे। पर उनका एक सिपाही था जो कि पुराना था, जंग में से वो आर्मी से रिटायर हुआ था। उसने झंडा पकड़ा और उसने यूं कर कर ऊंची जगह पर खड़े होकर लहराना शुरू कर दिया। और जो थोड़े से थे उन्होंने बहुत सारों को मार दिया। उसने ऐसा जज्बा दिया कि उसने बहुत सारों को उन्होंने मार दिया। वो दो मुल्कों का भी मेरे नाम ज़हन में नहीं आ रहा, जुबान पर आ नहीं रहा, इसलिए मैं बोला नहीं हूँ। कभी आ गए तो बता दूंगा। तो ये हकीकत में एक स्टोरी है। तो मतलब हमें अपने आप को इस काबिल करना है, इस काबिल होना इंतहाई जरूरी है। हिसाब लगाना बड़ा जरूरी है। और यहां पर जो बाइबल में बात हो रही है, हमारी जंग शैतान के साथ है। किसके साथ है? हमारी किसके साथ जंग है? यीशु मसीह ने कहा मैं तुम भेड़ों को कहां पर भेज रहा हूं? भेड़ियों के दरमियान। पेट दी जंग के नाल है, यह अजीब बात नहीं। भेड़िए के साथ अगर चीता लड़ने को जाए तो बात समझ आती है, या भेड़िए के साथ भेड़िया लड़े तो समझ आती है, पर भेड़ कैसे उसके साथ जंग करेगी?
पर ये खुदा का कलाम है। ये खुदा ऐसे कर सकता है कि वो भेड़ से भेड़िए को मरवा सकता है। मतलब कमजोर की बात हो रही है, भेड़ कमजोर है भेड़िए के सामने, पर अगर भेड़ का जोर खुदावंद है, दाऊद यूं तो नहीं कहता, दाऊद कहता खुदावंद मेरा चुपान है। वो क्यों कहता है? इसलिए क्योंकि वो खुद एक चुपान है और उसे पता है कि चुपान अपनी भेड़ को कैसे बचा सकता है। आमीन। चुपान एक भेड़ को कैसे बचा सकता है? अगर भेड़ के पीछे खुदा है, मतलब कलीसिया के पीछे खुदा है, पादरी के पीछे खुदा है, डीकन के पीछे खुदा है, एल्डर के पीछे खुदा है, मुबश्शिर के पीछे खुदा है, रसूल के पीछे खुदा है, तो वो कभी भी जंग नहीं आ सकता। वो जीत जाएगा, वो गालिब आएगा, क्योंकि खुदा उसके बात अब्राहम की कर रहे हैं ना। अब्राहम क्यों बढ़ गया? वो क्यों कामयाब हो गया? या वो क्यों कामयाब है? वो कौमों का बाप कैसे बन गया? क्योंकि उसने खुदा को अपनी ढाल बनाया था। तलवार को नहीं, ताकत को नहीं, हाथ की ताकत को नहीं, बल्कि रूह की ताकत। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़िएगा जी, 33वीं आयत तक पढ़ना बस जी। यह कौन ऐसा बादशाह है हाँ जो दूसरे बादशाह से लड़ने जाता हो हाँ और पहले बैठकर मशवरा ना कर ले? जी आगे। क्या आया मैं 10,000 से उसका मुकाबला कर सकता हूँ? आया क्या मैं 10,000 से उसका मुकाबला कर सकता हूँ या कि नहीं? जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ आया है या आ रहा है, मैं 10,000 के साथ क्या मुकाबला कर सकता हूँ? ये तो बादशाह को पता है। बादशाह जब मशवरा करता तो वो जर्नैल के साथ मशवरा करता। हाँ 10, हमारी फौज की क्या हालत है, क्या लेवल है हमारे सिपाहियों का, हमारे सिपाहियों का क्या लेवल है? वो सबसे पहले लेवल पूछता है। आमीन। तो बाइबल मुकद्दस में लेवल लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने यहाँ पर 10 का फिगर इस्तेमाल किया है। अब 10 20 के साथ नहीं लड़ सकते, पर लड़ सकते हैं बाइबल मुकद्दस के मुकाबले। हालेलुया। एक 300 मार सकते ने इन्हें सारे। जदा उनसे क्या करवाया? 300 से कितने मरवाए? बेशुमार। वो बौद्धों को मरवा देता है। तो ये तब होता है जब इत्मीनान होता है। आमीन। यहां पर खुदा पर इत्मीनान कर रहे हैं। यीशु यहां पर जो बात कर रहे हैं, ये जमीनी स्टोरी देकर रूहानी स्टोरी समझाने की उसने कोशिश की है कि समझो मेरी बात। तमसील दी है, मिसाल दी है। ये आगे बढ़िएगा। नहीं तो जब वो हनूज दूर ही है, हाँ जी, एलची बेचकर शराइत सुलह की दरख्वास्त करेगा। सुलह की दरख्वास्त कर लेगा। हम सुलह करना चाहते हैं, हम लड़ना ही नहीं चाहते। बस इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे, हाँ अपना तर्क ना करे। एंड पर क्या बात हुई है? सुलह कर ले। क्या कर ले? सुलह। जो 20,000 लेकर आ रहा है, 10,000 वाला क्या कर लेगा? सुलह कर लेगा। अगर उसे पता है कि हमारी इतनी पावर नहीं है, तो वो क्या करेगा? सुलह कर लेगा। आगे। बस हाँ। इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब इस कुछ तर्क तरह ना करे, तुम में से, इसी तरह क्या लिखा है? तुम में से तुम में से। आगे। जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे, जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे, वो मेरा शागिर्द नहीं। वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। मतलब यीशु ने कहा कि तुम डाल दो, हथियार डाल दो कि हम कुछ नहीं है, तू सब कुछ है। यीशु मसीह ने ये कहा भी कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी कर। अब्राहम कुछ नहीं कर सकता था। अब्राहम क्या कौम बन सकता था? कसीरत तादाद उसके औलाद पैदा हो सकती थी, पर ये कैसे सब कुछ हुआ? खुदा की कुदरत की वजह से, खुदा की वजह से ये हुआ। तो ये हमारी जिंदगी में भी हो सकता है जो हम चाहते हैं, क्योंकि हर खादम के पास या हर ईमानदार के पास एक टारगेट है। खुदा ने उसे एक टारगेट दिया है और उस टारगेट को उस वक्त वो अचीव कर सकता है जब वो खुदा को सब कुछ दे देगा, जब वो अपने आप को खाली कर देगा, तो वो उस टारगेट को क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है। आइए 3 हवाले मैं इनको पढ़कर वाइंड अप करना चाहता हूँ। अमाल की किताब 7वां बाब और उसकी 1 से 6 आयत तक जल्दी से पढ़िएगा बेटा जी। और दूसरा वाला 2 क्रंथियों 6 बाब उसकी 17वीं आयत को निकालिएगा। और तीसरा वाला जो है वो इब्रानियों 11 की 8वीं आयत को जल्दी से ये 3 बंदे निकाल लें और बारी पढ़ना शुरू कर दे जी। जिसने पहला निकाला जल्दी से।
अमाल 7 बाब। फिर सरदार काहिन ने कहा, हाँ जी, क्या ये बातें इसी तरह पर हैं? हाँ जी, उसने कहा, ऐ भाइयों हाँ जी, और बुजुर्गों, सुनो। सुनो, खुदाए जुल जलाल हमारे बाप खुदाए जुल जलाल हमारे बाप अब्राहम पर उस वक्त जाहिर हुआ जब वो हरान में बसने से पेशतर मेसोपोटामिया में था। हाँ जी, आगे। और उससे कहा कि अपने मुल्क और अपने कुंबे से निकलकर हाँ, उस मुल्क में चला जा, हाँ जी, जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। आगे। इस पर वो कसदियों के मुल्क से निकलकर हरान में जा बसा जी, और वहां से उसके बाप के मरने के बाद खुदा ने उसको इस मुल्क में लाकर बसा दिया, हाँ जी, जिसमें तुम अब बसते हो। हाँ, और अब उसको कुछ मिरास बल्कि कदम रखने की भी उसमें जगह ना दी, हाँ जी, मगर वादा किया कि मैं ये जमीन तेरे और तेरे बाद तेरी नस्ल के कब्जा में कर दूंगा। हालांकि उसके औलाद ना थी, हालांकि उसकी औलाद ना थी। और खुदा ने ये फरमाया कि तेरी नस्ल गैर मुल्क में परदेसी होगी। हाँ जी, ये भी खुदा ने कहा कि तेरी नस्ल क्या होगी? गैर मुल्क में परदेसी होगी। आगे मिस्र में वो उनको गुलामी में रखेंगे और 400 वर्ष तक उनसे बदसलूकी करेंगे। हाँ जी, आगे। फिर खुदा ने कहा कि जिस कौम की वो गुलामी में रहेंगे उसको मैं सजा दूंगा। आगे, और उसके बाद वो निकलकर इसी जगह मेरी इबादत करेंगे। आगे। और उसने उससे खतना का अहद बांधा और इसी हालत में अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ और 8वें दिन उसका खतना किया गया और इसहाक से याकूब और याकूब से 12 कबीले के बुजुर्ग पैदा हुए। आमीन। मतलब खुदा ने उससे बुलाया, उसे अकेला रहने नहीं दिया। इसमें बहुत सारी बातें जो कि हो सकती हैं, पर मैं नहीं करूंगा। आगे दूसरा वाला, दूसरा ग्रंथियों मैंने आपको कथा निकाल कर रखे। सोए हुए क्यों हैं? इस वास्ते खुदावंद फरमाता है, हाँ जी, कि उनमें से निकलकर अलग रहो, उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा। सुनिएगा, अल्लाह के रहना है। क्या कहा गया है? दूसरा ग्रंथियों 6 बाब की 7वीं आयत में क्या लिखा है कि हमने क्या रहना है? अलग रहना है। क्योंकि जो बुलाया होता है वो अलग किया हुआ है, और जो अलग किया हुआ है वो नापाक चीजों में हिस्सा। मेरी बात सुन रहे हो? जो बाइबल की सुन रहे हो? आप अलग किए हुए हैं तो फिर नापाक चीजों को हाथ, नापाक काम जो कुछ रिश्तेदार कर देने वो नहीं करना, जो बाइबल कहती है वो करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो रिश्तेदारों के कहने पर जो है वो फिर जाते हैं। कब क्या करें, हमारी नाक नहीं रहती, रिश्तेदार नहीं रहते। यहाँ तो रिश्तेदार तो यहाँ फिर खुदा। आमीन। अलग होना है, बातें बहुत सारी हैं। अगला इब्रानियों 11 की 8। ईमान ही के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया, ईमान ही इसके सबब से अब्राहम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला, हुक्म मानकर उस जगह पर चला गया जिसको मिरास में लेने वाला था। और अगर से जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ तो भी रवाना हो गया। ईमान ही से उसने मुड़ के, सुनिए, जानता नहीं पर निकल पड़ा है। क्यों? क्योंकि खुदा की बात हो रही है। खुदा ने जो उसे कहा है वो खुदा की ताबेदारी कर रहा है। क्या कर रहा है? खुदा ने उसे कहा कि तू अलग हो जा, तू अलग हो गया। उसने सब कुछ छोड़ा है, उसने वतन छोड़ा है, बाप का घर छोड़ा है, नातेदार छोड़े हैं, तो वो खुदा के कह के मुताबिक क्या हुआ? निकल पड़ा। और खुदा ने उसे इजहाक दिया, इजहाक को याकूब दिया। खुदा ने उसको बढ़ाया, खुदा ने उसको क्या दी? उसे बरकत दी, उसे खुदा कसरत में लेकर आया। तो बात करने का मतलब ये है कि याद रखिएगा, जब खुदा ने आपको बुलाया एज ए पास्टर, एज ए एल्डर, एज ए डीकन, एज ए मुबशर, एज ए मुबशरा, जो कुछ भी खुदा ने आपको बुलाया है, अगर आज आप सीख रहे हैं, अकेले हैं, बैठे हुए हैं, पर याद रखिएगा, अगर आप अब्राहम की तरह, मुकद्दसों की तरह, ईमानदारों की तरह, रसूलों की तरह अपने आप को खुदा के सामने पेश कर देंगे और खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करना शुरू कर देंगे, खुदा की ताबेदारी में आ जाएंगे, झुक जाएंगे, अपने आप को सरेंडर कर देंगे खुदा के सामने, तो खुदा आपको बढ़ाएगा। आज के आप जो शागिर्द हैं, कल के उस्ताद होंगे। आमीन। वो कल का अब्राहम अकेला आज कौमों का क्या है? आज आप शागिर्द हैं, कल उस्ताद बनेंगे। पर तब होगा जब आप वफादार रहेंगे, तो तब ये होगा। अगर वफादारी नहीं
तो कभी भी आप तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की करने के लिए, बढ़ने के लिए, कसरत में आने के लिए, खिदमत को आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है कि हम खुदा की वफादारी करें। आमीन। याद रखिएगा, मिसालें यहाँ पर बहुत सारी मेरे सामने आ रही हैं। एलिया की और अलीशा की आपके सामने एक बड़ी मिसाल है कि वो अपने उस्ताद का ताबेदार था। आज हमने भी खुदाम यसु मसीह हमारा पहला उस्ताद है, और उसके वसीला से जो खादम दीन हैं वो भी हमारे उस्ताद हैं। यहाँ उनकी रहनुमाई में हमने चलना है, वफादारी में चलना है, तो खुदा क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा और खुदा बरकत देगा। जब खुदा किसी को बुलाता तो उसे क्या करता है, बढ़ाता है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे।